discuss the Hindu in 10 minutes with vocabulary. Let's start. The main topics are, see, there are 6 topics. First one is vocabulary. International, national, states, sports, and MCQs. First one is vocabulary. Let's start with discuss one by one. First word is consensus. Consensus means a general agreement. Debacle means a complete failure. Unconditional means not conditional. Buoyed means more confident about a situation. Contempt means the feeling that a person or a thing is worthless. Let's discuss about the international affairs. First one is Germany and Ukraine. In between Germany and Ukraine. Okay. Here Ukraine said, I will join NATO. Okay. But Germany said, you will not able to join the NATO, because here said that German Chancellor Olaf Scholz said, it is important to realize that a country at war absolute cannot become a member of NATO. ये बोला, क्या बोला है? अगर नाटो वार के टाइम में कंट्री को नाटो का मेंबर नहीं बना सकते करके जर्मनी का चांसलर ओल्फ स्कोल्स ने बोला. तो फिलहाल अभी यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर कौन है ना? वोलोदिमीर जेलेंस्की. वोलोदिमीर जेलेंस्की. Next affairs is India and China. India and China disengagement. Let us discuss it broadly in map. Here, this is the line of actual control in between China and India. Here 2 points are Dipasanga and other one is Demchok. In this one is Eastern Ladakh. This is the Eastern Ladakh. This one is Western Ladakh. Here this one is line of actual control in this area. This one and this one. In between this one, the Indian Army and China Army are engaged with the wars. So here declare the here Rajnath Singh declare the disengaging at least 2 frictional point. These 2 frictional point disengaging हो गया उनका. इनके बीच में एक जनरल here I mention as a vocabulary word consensus, means general agreement to restore the ground situation based on the principle of equal and mutual security. He added this include restoration of patrolling and grazing to traditional areas. अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है. यहाँ पे लिखा है कि सोर्स के हिसाब से दिया है कि disengagement is completed and patrolling will be resumed as being done before the stand-up. The stand-up and restoration landform and source से ये है कि
ये जो दो फिक्शनल पॉइंट है, कौन से पॉइंट है? जैसे हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था, ये डेप्संग, दिस वन डेप्संग एंड दिस डमचोक, ये दो फिक्शनल पॉइंट में क्या हुआ, जो मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह होता था, टेंट वगैरह, लैंड फॉर्म वार थोड़ा थोड़ा होता था, वो अभी डिसंगेजमेंट हुआ है, कुछ जनरल एग्रीमेंट हुआ। वो जनरल एग्रीमेंट मतलब क्या है, उसका वोकैबुलरी कॉन्सेंसियस, ये भी देखिए यहाँ पे लिखा है कॉन्सेंसियस। इनके बीच में, इंडिया एंड चाइना के बीच में एक छोटा सा जनरल एग्रीमेंट हुआ, ये दो फिक्शनल पॉइंट के हिसाब से। आप मिलिट्री पीछे ले लेंगे, हम मिलिट्री इधर पीछे ले लेंगे, ऐसे हिसाब से एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे स्टेट के बारे में। नेशनल। नेशनल में कौन से एफआईआर हुआ, कौन से न्यूज हुआ, देखिए अभी नाउ न्यू सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इलेक्टेड and oath on November 11. Which Chief Justice of India? It is Sanjeev Khanna. He belongs to New Delhi, and he worked as elevated as a additional judge of Delhi High Court in 2005 and made a permanent judge in 2016. According to Article 124 Constitution of India, the President is pleasure to appoint Judge of Supreme Court or Chief Justice of India. That is which article? Article 124. According to Article 124, President elected the CGI, Chief Justice of India. The Sanjeev Khanna is 51 member of CGI, and previous CGI is D.Y. Chandrachud, which superannuated on November 10. Another national affair is SEBI chairperson Bach, that is SEBI chair Madhuri Puribaj escape or ignore the parliament Park summons. Park means Park chairman. Who is Park chairman? Park chairman Congress leader K.C. Venugopal adjourned the meeting after reading the letter of Mr. Bush received less than 2 hours before the meeting dawned and conveying the ability to appear before the committee, and skipping the meeting could be considered contempt. And this is the vocabulary we discussed in the previous page. Contempt means, you should be know, contempt means a feeling that a person or a thing is worthless, means वो contempt of legislative bodies। जैसे हमारा सेबी का चेयरमैन माधवी परिभूत पाक समिति में वो पाक मीन्स, यार इसका मैं लिख देता हूँ इधर, पाक मतलब पब्लिक अकाउंट कमिटी। ये पब्लिक अकाउंट कमिटी में वो मीटिंग में ये पार्टिसिपेट नहीं किया, इग्नोर कर दिया, 2 आवर्स बिफोर ये इग्नोर कर दिया, तो ये क्या हुआ, हमारा लेजिस्लेटिव बॉडीज का कंटेम्प्ट हुआ, मतलब वर्थलेस, ये इसमें दिया है। तो इसमें मेन क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, सेबी का चेयरमैन कोई कौन है और अभी पाक का चेयरमैन कौन है ना, के.सी. वेणुगोपाल, और वही कांग्रेस लीडर है के.सी. वेणुगोपाल। नेक्स्ट डिस्कस विद स्टेट में ओडिशा में, ये ओडिशा रीजन, ओडिशा से स्टेट में एक साइक्लोन आया, उसका नाम है दाना। This is the severe cyclone which affected mainly 2 areas, that is Bhadraka and Kendujhar.
ओके। एंड इसमें क्या क्या हुआ अभी देखिए, इसमें मेन है, इसमें सारे पेड़ वगैरह इधर लिखा है, इसमें सारे पेड़ वगैरह ऑपरेट हो गया, मतलब वो पेड़ वो ये हो गया। एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ डैमेज हो गया। इसमें मेन कौन सा है, भद्रक एंड केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा ये हुआ है। अभी अभी सिचुएशन क्या है पता नहीं, अभी साइक्लोन होने के बाद पता चलेगा कितना लोगों का डेथ हो गया। जितना भी साइक्लोन्स आ रहा है उड़ीसा से, उड़ीसा में ज़्यादातर लॉस ही होता है। अभी देखिए इसमें उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया था, नाम ऑफ 5.8 लाख, 5.84 लाख को वो डिफरेंट उसे जो साइक्लोन सेंटर वहाँ पे ट्रांसफ़र किया था, और फूड वगैरह पे अदर फैसिलिटी वगैरह अवेलेबल किया। बट वहाँ पे जो फूड वगैरह उसमें प्रोवाइड नहीं किया था। अभी वो उसके लिए अभी वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में अभी कुछ रैली हो रहा है, खाना ठीक से नहीं दे रहे करके। अभी हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह, अभी उड़ीसा हमारा चीफ मिनिस्टर जो है मोहन मांझी के साथ बात किया टेलीफोन से, कि अभी क्या क्या प्रिपेयर किया है उसके लिए, क्या सब उसके साथ डिस्कशन हुआ। एंड अभी देखिए उसका लेआउट देखेंगे तो ये क्या है, पारादीप उड़ीसा मैप ऐसा है, देखता हूँ अभी उड़ीसा का डायग्राम करता हूँ। उड़ीसा ऐसा हो गया, यहाँ पे जब पारादीप है, ये पारादीप से 90 किलोमीटर डिस्टेंस है, 90 किलोमीटर, एंड 120 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ धर्मा उड़ीसा, एंड 220 किलोमीटर फ्रॉम सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल से। कितना है, 220 किलोमीटर यहाँ से। यहाँ पे देखेंगे तो वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल से 220 किलोमीटर, 210 किलोमीटर डिस्टेंस है। मेन अफेक्टेड कौन से एरिया, एक है भीतरकनिका करके, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये ज़्यादातर इफेक्ट हुआ है। ये एग्जाम आ सकता है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इफेक्ट हुआ है, भीतरकनिका। हाँ, कौन से टू डिस्ट्रिक्ट, भद्रक, एक एज पर ओपीएससी ओपीएससी और ओडिशा पीसीएस एग्जाम आ सकता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड हुआ है, जस्ट लाइक भद्रक एंड केंद्रपड़ा, केंदुझर, राइट, नॉट केंद्रपड़ा, दैट इज केंदुझर, केंद्रपड़ा, सॉरी, केंद्रपड़ा। There are two districts affected, and main wildlife sanctuaries are Bhitarkanika, only one Bhitarkanika wildlife sanctuary. Another state about relation, we दूसरा देखिए स्टेट के कौन सा अभी अफेयर्स हुआ। अभी JNK का इलेक्शन हुआ था, उसमें नेशनल पार्टी विन हो गया। नेशनल पार्टी में कौन लीडर है, उमर अब्दुल्ला। अभी उमर अब्दुल्ला इज इलेक्टेड एज a CM ऑफ JNK, and he वो जाके हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अभी उनका मुलाकात हुआ। मुलाकात होने के बाद क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन लिया था, इसके लिए एक कैबिनेट पास करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। कैंपिंग किया है न्यू दिल्ली फॉर 2 दिन के लिए अब्दुल्ला। क्या ना, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इन फर्स्ट मीटिंग रिसेंटली मिस्टर मोदी इन न्यू दिल्ली। जब वो मीट किए मोदी से, पहले उनका मतलब रिस्टोरेशन, स्ट्रॉन्ग रिस्टोरेशन था कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड दे दीजिए। और इसमें जो स्टेटहुड दिया था, इसमें आर्टिकल 30 को मेंशन भी नहीं किया था, विदाउट मेंशनिंग आर्टिकल 30। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पॉइंट आ सकता है। उनका पार्टी नेशनल एनसी पार्टी है। और क्या आ सकता है, पहले तो अब्दुल्ला पहले विजिट हुआ न्यू दिल्ली में
एज ए CM आके उसको फिर वो क्या किए, इंडियन में हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह को बुलाया, डिफेंस मिनिस्टर भी उनको भी बुलाया। एक मिनट, ये स्टेट का हो गया। अभी स्पोर्ट्स में देखेंगे तो इतना कुछ नहीं हुआ। मेन अभी हमें ये वाला पॉइंट्स यू कैन रिमेम्बर। रानी रामपाल इज द शी इज द इंडियन इंडियन टेनिस प्लेयर, हॉकी प्लेयर, इंडियन हॉकी प्लेयर। ही ड्रॉज एक उनके कैरियर में वो ड्रॉ कर दिया। अभी वो रिटायर्ड जैसा हो गया, अभी वो नहीं खेलेंगे। ये मेन इम्पोर्टेंट हो गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ में ये आ सकता है रानी रामपाल कौन से खेल से संबंधित है, तो उनका इन हॉकी से संबंधित है। तो आज का एमसीक्यू क्या है? आज का एमसीक्यू है कि अभी रिसेंटली जो लैंडफॉल हुआ उड़ीसा कोस्ट में, वो कौन सा, उनका नाम क्या है? उनका नाम दना है। और अब नेक्स्ट CGI कौन है? अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना, जस्टिस संजीव खन्ना है। और ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है इस पर, पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आ सकता है, विच अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल, ये आ सकता है अकॉर्डिंग टू, सॉरी आई विल चेंज माई कलर, कौन से आर्टिकल तहत प्रेसिडेंट इलेक्टेड करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 के तहत प्रेसिडेंट इलेक्टेड करता है CGI। ये आज का मेन इम्पोर्टेंस अभी 3 आया, इसमें आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ भी आ सकता है। चल मिलते हैं, थैंक यू। इतना ही वीडियो है। मेरा यूट्यूब चैनल है फ्रीडम क्लासेस। ये मेरा पहला वीडियो है। नेक्स्ट कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू।